वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक रहेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, साइलेंट फीचर्स एंड इट्स फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको कि हम कैश बुक की समरी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। इसमें कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स का हम जो है ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कैश पेमेंट्स और कैश रिसिप्ट्स का। It is a summary of cash and banking transactions under the various heads. For example, subscription received from the member on different dates which appear on debit side of cash book. यानी कि इसका जो फॉर्मेट होता है उसके फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन इज ए पार्टिकुलर रिवेन्यू नेचर इनकम जो कि पार्टिकुलरली एनपीओज को होती है और उसको हम यहाँ पर शो करते हैं डेबिट साइड में, बिकॉज इट इज ए रिसिप्ट and shall be shown on the receipt side of the receipt and payment account as one item with its total amount standing for including the previous year amount plus current year amount plus next year amount if any। तीनों साल के अमाउंट के तौर पर जो भी आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिली है दैट विल बिकम्स द टोटल अमाउंट, उसको हम यहाँ पर शो करके चलेंगे। सिमिलरली सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस paid from time to time appear on the credit side of the cash book, जिसको कि हम क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक प्रेजेंट करके चलते हैं, क्योंकि ये खर्चे हैं हमारे। द टोटल सैलरी पेड एंड टोटल रेंट पेड, टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ड्यूरिंग द ईयर will be recorded on the payment side of the receipt and payment account. Here total standing for if there is any advance payment that also to be included here. If there is any previous year payment that will also included here, that will be considered as total payment. Receipt and payment account is a summary of cash book. Its form is identical with that of simple cash book without discount and bank columns with debit and credit sides. Receipts are recorded on the debit side while payments are entered on the credit side. That is why it is called as summary of cash book, because in the cash book we will do the same. जितनी भी रिसिप्ट होती हैं कैश बुक में वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। So this is the first feature of the receipt and payment account. Second is receipt and payment account gives summarized picture of various receipts and payments, irrespective of whether they pertain to current year period, previous year period or succeeding period. That is current year, that is previous year and that is next year। वो चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, तीनों ईयर्स की अगर रिसिप्ट्स हैं तो रिकॉर्ड कर ली जाएंगी, तीनों ईयर्स की यदि पेमेंट्स है तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इट शोज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स irrespective of period to which they pertain or to belong. For example, in receipt and payment account for the year ending on March 31st, 2020, we record the total subscription received during 2019-20, including the amounts related to the years 2018-19, 2021 on the receipt sides. It means कि यहाँ पर हम जो टोटल अमाउंट होता है, सपोज करिए अकाउंट हम बना रहे हैं 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2021 तक के जितने भी बैलेंसेस आपको एडवांस में मिले हैं या आपने पेड किए हैं, that will be recorded in this account. Similarly, we record taxes paid during 2019-20 on the payment side, even if they relate to the years 18-19 or 2021. It means it doesn't matter whether it is related to current year item, previous year item or next year item. If items is to be paid in cash or the amount is to be received in cash, that will be recorded in receipt and payment account. Third one, it includes all receipts and payments whether they are of capital nature or revenue nature, चाहे वो capital nature के item हो चाहे वो revenue nature के item हो। In the previous classes we have discussed about this one, what is capital nature account and what is revenue nature account। कैपिटल नेचर आइटम और रिवेन्यू नेचर आइटम्स का मतलब क्या है। तो कैपिटल नेचर आइटम से अगर हम बात करें तो एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड
ओकेजनली, कभी कभी पैसा जो मिलता है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसिट्स। और ऐसा पैसा जिसको हम एसेट्स के इंप्रूवमेंट पर, एसेट्स की बढ़ाने पर, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने पर खर्च करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू नेचर आइटम्स इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, in these revenue receipts and revenue payments we are including day to day basis expenses and incomes। revenue receipts में जो रूटीन बेसिस पर आपको इनकम होती है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आप रूटीन बेसिस पर सैलरी, रेंट वगैरह पेड करते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट represents cash in hand and cash at bank which is shown on its debit side, and closing balance of accounts represents cash in hand and cash at bank at the end of the year which is representing on the credit side of the receipt and payment account. However, if there is a bank overdraft at the end, it shall be shown on its debit side as the last item। क्योंकि बेटा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस माना जाता है, और जो बैंक का नेगेटिव बैलेंस माना जाता है उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करके चलते हैं। तो इट मींस कि जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो हमें क्या बताता है, बेसिकली वो हमें शो करता है इसके बारे में कि ओपनिंग कैश कितना है और क्लोजिंग कैश कितना है, ओपनिंग कैश एट बैंक कितना है, क्लोजिंग कैश एट बैंक कितना है, इनके बारे में वो रिप्रेजेंट करके चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट बिगिंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम इसको ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोजेस विद द ईयर एंड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। इन फैक्ट द क्लोजिंग बैलेंस इन दिस अकाउंट difference between the total amount of receipts and payments, which is usually a debit balance, reflects cash in hand and cash at a bank unless there will be a bank overdraft। इसको अगर हम समझें तो आप ऐसे एक पीसीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कैश बुक बनाई जाती है, ये आपकी रिसिप्ट साइड होती है बेटा, ये आपकी पेमेंट साइड होती है। इट इज सेइंग दैट कि जो सबसे पहला बैलेंस लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, that will be considered the balance for cash in hand and cash at a bank। that will be considered cash in hand and cash at a bank का बैलेंस होता है हमारे पास। और जो आखिरी का बैलेंस बचता है वो बाय बैलेंस कैरीड डाउन होता है, that is the balance of cash in hand and cash at bank। तो इसकी रिसिप्ट साइड को जोड़कर और इसमें से डेबिट साइड को अगर माइनस कर दें तो जो बैलेंस बचता है that will be considered as closing cash and closing bank balance। नेक्स्ट है हमारे पास, नो डिस्टिंक्शन इज मेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड इन कैश और थ्रू द बैंक। जब हम एनपीओज में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में हम इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं कि बैंक की पेमेंट कर रहे हैं, उनमें हम कोई अंतर नहीं मानते, दोनों ही ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन मानकर हम इस बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज, the total amount of each receipts and payment is shown in this account। हम इस बात को इग्नोर करते हुए जो भी पैसा आता है वो रिसीट्स में और जो पैसा जाता है वो पेमेंट्स में रिकॉर्ड करके चलते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट शो any non-cash items like depreciation, outstanding expenses, accrued incomes, etc. This is because receipts and payment account is prepared on cash basis of accounting। तो इसको किस आधार पर बनाया जाता है, कैश बेसिस पर बनाया जाता है। तो कैश बेसिस पर जब हम इसको मेंटेन करते हैं तो हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, इट इज ए नॉन कैश ट्रांजैक्शन, आपने कैश फ्लो के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, लेकिन नॉन कैश आइटम होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, स्टिल अमाउंट पेबल है, तो पेड नहीं की तो पेबल है, पेबल है तो इसका मतलब ये नॉन कैश आइटम अभी पेड किया नहीं है, पेड करेंगे। नॉन कैश आइटम तो नहीं है लेकिन पेड करेंगे, मतलब अभी कैश में हमारे पास से कुछ नहीं गया इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे ही एक्रूड इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये थी इसकी कुछ फीचर्स। अगर उनको हम समराइज करें तो फर्स्ट फीचर थी, मैंने आपको बताया था कि कैश बेसिस पर इसको बनाया जाता है, ये कैश बेसिस पर बनता है। दूसरी फीचर थी ये कैश बुक की समरी होता है। तीसरी फीचर थी ये एक रियल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। चौथी फीचर थी इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर किसी भी साल के एलिमेंट्स को हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नगद में होने चाहिए, यानी कैश पेमेंट होनी चाहिए, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होनी चाहिए।
ये कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स में कोई अंतर नहीं करता। इसके लिए कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स दोनों एक जैसी बातें होती हैं। ये कैपिटल पेमेंट्स और रिवेन्यू पेमेंट्स में कोई अंतर नहीं करता। इसके लिए कैपिटल पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट एक जैसी बात होती है। ये ओपनिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से स्टार्टअप होता है और क्लोज होता है बाय कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्लोजिंग से। तो ये इसकी फीचर्स थी। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड फीचर्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ऑफ अकाउंटिंग। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस बेस पर बनाई जाती है, किसके कौन सा बेस उसके लिए हम फॉलो करते हैं? तो दैट विल बी वी आर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन को फिर देखें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर इसको हम प्रिपेयर करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा इसमें, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स समराइज्ड पिक्चर ऑफ वेरियस रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द। जो कि रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट होता है वो बेसिकली किसकी समरी होता है? समराइज्ड पिक्चर ऑफ वेरियस रिसीट्स एंड पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो कैश बुक होती है उसमें जो कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट होती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसी की एक समराइज्ड पिक्चर होती है, irrespective of whether they are pertaining to current, previous or next year, or whether they are of capital or revenue nature item। कैपिटल और revenue nature item चाहे किसी से भी बिलोंग करते हो, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ब्लैंक shows the classified summary of transactions of cash book in a not for profit organization। तो कौन सा अकाउंट है जो कि कैश बुक की समरी को शो करता है एनपीओ के अंदर? तो अभी हम पढ़कर आए हैं, दैट इज योर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज the difference between total amounts of and which is usually a debit balance that reflects। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें और ध्यान से समझें। कह क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। जो हमारी टोटल रिसीट्स होती हैं और टोटल पेमेंट्स होती हैं, उनके बीच के डिफरेंस से हम क्या निकालते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और जनरली वो जो बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है वो बैलेंस किस चीज का होता है? या तो कैश इन हैंड का होता है बेटा, या कैश एट बैंक होता है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है? ये कहता है जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के, वो किसका डिफरेंस होता है? जो टोटल ऑफ रिसीट साइड्स होती हैं बेटा, टोटल ऑफ रिसीट साइड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये टोटल, ये रिसीट साइड का टोटल, इसमें से माइनस करते हैं पेमेंट्स को, तो जो क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक बैलेंस बचता है वो हमारे सामने निकल कर आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? बेटा सीधी सी बात है, ये फॉल्स होगा। यहां लिख दिया इसने ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जबकि हमें पता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिवेन्यू रिसीट्स भी आती हैं और रिवेन्यू पेमेंट्स भी आती हैं। और कौन सी वाली आती है? केवल जो कैश में होती है बेटा, है ना। चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, चाहे वो रिवेन्यू रिसीट हो, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, चाहे वो रिवेन्यू पेमेंट हो, केवल और केवल कैश बेसिस की ही ट्रांजैक्शन हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा हमारे लिए बेटा फॉल्स। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स recorded in the cash book irrespective whether they are of capital nature and revenue nature। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। ये फिर से गलत हो गया।
क्योंकि अभी हमने बात की थी कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट के अंदर कैपिटल नेचर के आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू नेचर के आइटम के साथ, तो इट इज अगेन फॉल्स। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है receipts and payment account does not differentiate between capital and revenue receipt. Definitely it is true. इसके लिए कोई अंतर नहीं है, चाहे आइटम कैपिटल नेचर का हो चाहे रिवेन्यू नेचर का हो, ये सभी आइटम्स की यदि रिसिप्ट है तो रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट है तो पेमेंट करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। Receipts and payment account records all cash receipts irrespective whether they are of capital और रेवेन्यू नेचर रिसिट्स। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में हमने जो बात की रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू हाउ वी कैन प्रिपेयर द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसके लिए कुछ पार्टिकुलर स्टेप्स हैं, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका take the opening balances of cash in hand and cash at bank and enter them on debit side. In the case there is bank overdraft at the beginning of the year, entered it is on the credit side of the account. यानी कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसमें कैश और बैंक का बैलेंस लिखते हैं बेटा। तो कैश और बैंक का यदि फेवरेबल बैलेंस है तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और इधर लिख देते हैं कैश इन हैंड एंड कैश एट ए बैंक, यहां लिख देते हैं। अगर उसका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो हम इधर लिख देते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन और ब्रैकेट में डाल देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट आ जाती है। दूसरा पॉइंट है शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल रिसीट्स इन इट्स डेबिट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। यानी जितने भी पैसा, जितना भी रिसीट्स हमें मिली है, चाहे वो कैपिटल नेचर की मिली हो, रेवेन्यू नेचर की मिली हो, सारी की सारी रिसीट्स हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कि वो रेवेन्यू नेचर की है कि वो कैपिटल नेचर की है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं वो सारे के सारे वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट में तो पैसा आएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे, जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे। चाहे हमने 1 रुपए की पेंसिल परचेज की तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, चाहे हमने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी चाहे रेवेन्यू नेचर का आइटम हो चाहे कैपिटल नेचर का आइटम हो, इट डजंट मैटर, हम दोनों आइटम्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल पेमेंट, इट इज द सेम। ऊपर रिसिप्ट्स की बात हुई थी, नीचे पेमेंट्स की बात हुई थी, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, हम ऐसे ही पेमेंट को भी रिकॉर्ड कर लेंगे इसके अंदर। None of the receivable income, receivable means which has not been received yet, and payable expenses which has not been paid yet, यानी कि outstanding and accrued, इनको हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज ये ना तो इनफ्लोज ऑफ कैश के बारे में कुछ कहते हैं, ना ही आउटफ्लोज ऑफ कैश के बारे में कुछ कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एक्सेट्रा। यानी कि हमारा जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट है वो डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करता। फिफ्थ स्टेप है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट side and total of credit side of account and enter the same on the credit side as the closing balance of cash and bank। और उसके बाद हम बैलेंस निकालते हैं बेटा टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट की साइड का। अगर डेबिट साइड ज्यादा है उसमें से हम क्रेडिट को माइनस कर देते हैं तो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बचता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमारे सामने निकल कर आएगा। So that will be the bank overdraft balance. So कुछ important points जो कि हमने पढ़ा उससे related, it may be noted that receipt side of receipt side and payment side gives a list of revenue receipts for past, current and future periods, as well as capital receipts of past, present or future period. Similarly, the payment side of the receipts and payment side list of the revenue payments for past, current and future period
so as well as capital receipts also be represented by this account. तो इन शॉर्ट में बात कहूं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट करता क्या है, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बेसिकली आपको टोटल रिसिप्ट्स, चाहे वो करंट की हो, चाहे प्रीवियस की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, टोटल पेमेंट चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं इसके फॉर्मेट को, हाउ वी कैन प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान से समझते हैं, कैसे कैसे इसमें आइटम लिखे गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर। ये फॉर द ईयर एंडिंग बनता है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रिसिप्ट साइड की। रिसिप्ट साइड में सबसे पहला हमने जैसे कि फीचर्स में पढ़ा और पॉइंट्स में पढ़ा कि हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस लिखकर चलते हैं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक लिखेंगे, और ये बैलेंस यहां से हम ट्रांसफर कर देते हैं बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ये हमारे एसेट्स के बैलेंस होते हैं, तो इनको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में यहां से ट्रांसफर कर देते हैं। और इसके अपोजिट यदि बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं, लायबिलिटी साइड में हम इसको शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है टू सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर। अब सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अमाउंट पेबल बाय इट्स मेंबर ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, जैसे मर्जी वो देना चाहे वैसे दे सकते हैं। इट इज ए रेगुलर नेचर इनकम, और रेगुलर नेचर इनकम होती है तो इसको हम रेवेन्यू नेचर के आइटम में ट्रीट करते हैं। जर्नल डोनेशन, दैट इज ए काइंड ऑफ नॉर्मल डोनेशन, और जितने भी जनरल डोनेशन होते हैं दोज आर आल्सो टू बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू नेचर आइटम्स। टू एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, जैसे किसी एनपीओज के अंदर आपको यदि एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आप वहां जाते हैं और वहां पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यू नीड टू बी गिव सम एंट्री फीस, एडमिशन फीस, जो कि 5 रुपए की या 10 रुपए की आपकी एक स्लिप हो सकती है, जिसको लेकर आप पूरे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं और अपना इलाज, अपने लिए मेडिसिन ले सकते हैं। तो एक प्रकार की रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है जो रेगुलर बेसिस पर एक एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड वेस्ट पेपर्स, जैसे कि रेगुलर बेसिस पर एनपीओ न्यूज़पेपर्स परचेज करता है और जो भी स्क्रैप होता है उसको एट द एंड में सेल कर देता है। तो इस प्रकार से जो पैसा आता है दैट इज आल्सो टू बी टर्म्ड एज रेवेन्यू नेचर आइटम्स, तो इसको हम रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानते हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, एज यू नो दैट कोई भी एनपीओ होता है तो उसमें हम बेसिकली स्पोर्ट्स एक्टिविटी रख सकते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जा सकती है। तो उनके लिए जो मटेरियल परचेज किया जाता है वो मटेरियल कभी कभी जो है ना टूटता फूटता रहता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसको हम बेच देते हैं, यानी एनपीओ उसको बेचता रहता है रेगुलर बेसिस पर। तो इस प्रकार से कोई पैसा आता है तो वो भी इसकी रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट मानी जाती है। द इंटरेस्ट ऑन एफडीज, इंटरेस्ट ऑन एफडी का मतलब है अगर कोई पैसा आपने बैंक में जमा कराया है उसके ऊपर कोई बैंक इंटरेस्ट आपको मिलता है तो रेगुलर बेसिस पर मिलेगा, एंड दैट इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर इनकम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डिविडेंड और जनरल इन्वेस्टमेंट, अगर हमने जनरल इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पर होने वाली इनकम भी हमारी क्या मानी जाएगी, जनरल इनकम मानी जाएगी, और उसको हम यहाँ पर शो करके चलेंगे एज ए रेवेन्यू नेचर आइटम। फिर उसके बाद है टू लोकर रेंट एंड रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप्स, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ग्रांट इन एड। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं दीज आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर रिसीप्ट्स, इनको रेवेन्यू नेचर रिसीप्ट मानते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के हम किस साइड शो कर देंगे इनको, बताइए, इनकम साइड में। किस साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, इनकम साइड में। ये इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट्स वाले एलिमेंट हुए जो रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट से। आइए कुछ और एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे टू लीगेसी लाइफ मेंबरशिप फीस, इनको हम डायरेक्टली कैपिटल फंड के अंदर बेटा ऐड कर देते हैं। अगर लीगेसी के बारे में स्पष्ट तौर पर दिया है कि एक कैपिटल रिसिप्ट है, अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो वी कैन ट्रीट इट एज रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स, और एज पर एनसीईआरटी गाइडलाइंस इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन इनकम साइड।
तो हम इसको फिलहाल तो कैपिटल रिसीट मानकर यहाँ पर कैपिटल फंड में प्लस कर देते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर जिम, दीज आर ऑल्सो टू बी टर्म्ड एज कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स। और क्योंकि स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन है और स्पेसिफिक नेचर का डोनेशन जैसे कि जिम बनाने के लिए, बेटा जिम बनाने के लिए यदि आप डोनेशन लेते हैं तो वो स्पेशल नेचर का होता है, वो लायबिलिटी बन जाती है। तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब जो एसेट्स बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, उनसे भी तो हमें पैसा मिला, तो दीज आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस शीट फ्रॉम द एसेट साइड। अगर एसेट साइड में कोई मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है और हमने यहाँ बेच दी है तो उनको माइनस कर देंगे, फिक्स एसेट्स है और हमने बेच दी है तो उसको हम यहाँ माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है रिसीट्स ऑन द अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड, और स्पेशल फंड के बेस पे कोई रिसीट्स आई है तो हम देखते हैं बेटा स्पेशल एक्सपेंसेस गिवन है या नहीं है। अगर गिवन होते हैं तो इसको हम सेपरेटली जो है हम अकाउंट में शो करके चल सकते हैं। इसमें बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज साइड में हम इसको अलग से शो कर देते हैं और इसमें जितनी भी इनकम आती है वो सब ऐड करते जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको माइनस करते जाते हैं। हम इस पूरे अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपको फिलहाल जो है इस फॉर्मेट को एक बार समझना है, इसमें क्या क्या आइटम्स दिए गए हैं। पेमेंट साइड पर चलें तो पेमेंट साइड में सबसे पहला एलिमेंट होता है बेटा वेजेस एंड सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, मिसलेनियस इनकम, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कैरेज, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सचेंज, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस, ऑनरेरियम, repairs and rewards, and upkeep of grounds, charity, conveyance charges, newspapers and subscription. All these are to be treated as revenue nature items बेटा। ये सारे के सारे आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग शो करके चलते हैं, जिससे हमारी जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम जिसके आधार पर प्रिपेयर कर सके, बना सकें। आइए देखते हैं कुछ कैपिटल नेचर आइटम्स जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। सो दीज आर द कैपिटल नेचर आइटम। फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक, बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड के अंदर। परचेज ऑफ एसेट्स, मशीन, फर्नीचर, फैक्ट्स, मशीन, कंप्यूटर्स एटसेट्रा, these all are to be transferred to closing balance sheet asset side. 9% परचेजेज ऑफ डिबेंचर, ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी बेटा? कैपिटल नेचर की रिसीट्स, और बैलेंस शीट में हम इसको शो करके चलेंगे। और आखिरी में जैसे कि हमने बात की थी, टोटल ऑफ रिसीट्स में से टोटल ऑफ पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ कैश एंड बैंक जो है निकल कर आ जाएंगे। तो बताइए जरा, क्या आपको ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट समझ में आया? इसका फॉर्मेट आपको जो आइटम इसमें गिवन दिए हैं उन आइटम्स के नाम कुछ मेमोराइज हुए? बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रिसिप्ट्स में क्या आता है और पेमेंट्स में क्या आता है? आइए नेक्स्ट चलते हैं छोटे से इलिस्ट्रेशन पर, हम कैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। और जो समय बचा है उसके अकॉर्डिंगली हम ये क्वेश्चन आसानी से कर भी लेंगे। आइए इलिस्ट्रेशन 1.1 को देखते हैं। यहाँ हमें दिया गया है फॉलोइंग द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और उसके आइटम्स दिए हैं बेटा ओपनिंग, कैश एंड बैंक। बताइए ये एलिमेंट कहाँ पर लिखे जाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर? तो ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट में सबसे स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, बिकॉज दीज आर द बैलेंसेस। लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। देयरआफ्टर टू सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड में लिखा जाएगा, चाहे रिसीट किसी भी ईयर की हो, तीनों को जोड़कर एक लमसम अमाउंट आप रिसीट्स एंड पेमेंट में लिख दें, टू सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर जिम। व्हाट टाइप ऑफ डोनेशन इट इज स्पेशल टाइप ऑफ डोनेशन। तो ये भी हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी, और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो ये रिसीट और पेमेंट अकाउंट में हम इसको दिखाकर चलेंगे क्योंकि ये हमें एक रिसिप्ट हुई है। एडमिशन फीस,
ये भी रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड में आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी रिसीट साइड में आ जाएगा। वेजेस एंड सैलरी ये पेड की जाती है बेटा, पेड की जाती हैं तो खर्चे हैं, और खर्चे हमारे किसमें आ जाएंगे, पेमेंट साइड के अंदर। नेक्स्ट है लोकर रेंट। लोकर रेंट जो होता है बेसिकली वो एक प्रकार की, अगर हमने कोई लोकर किराए पर दिया है तो इनकम है, और अगर हमने किराए पर लिया है तो एक्सपेंस है। लेकिन अगर एनपीओ के अंदर कुछ मेंशन ना हो तो एनपीओ का ये काम होता है कि वो लोकर्स किराए पर देता है, तो ये एक क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है इनकम, और इनकम है तो रिसिप्ट साइड में हम इसको प्रेजेंट करके चलेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा, एक्सपेंडिचर हो गया हमारा कैपिटल नेचर का, तो इसको हम पेमेंट साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ जर्नल्स। हेल्थ जर्नल्स क्या होती है, हमारी एक प्रकार की बुक्स होती हैं, क्योंकि इसका काम ही क्या है, गुड हेल्थ क्लब, तो ये हेल्थ जर्नल इशू करता है, तो ये एक्सपेंसेस होते हैं इसके, तो इसको हम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस होता है, इसको पेमेंट साइड में हम लेकर चलेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब है बेटा पेमेंट साइड में हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होता है, पेमेंट साइड में दिखाएंगे। कोरियर चार्जेस पेमेंट में दिखाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट में दिखाएंगे। मशीनरी परचेज पेमेंट में दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम रिसीट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस रिसीट साइड में दिखाएंगे। कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया है, जबकि आप देखें ऊपर हमारे पास कैश का बैलेंस भी था और बैंक का बैलेंस भी था। इसका मतलब जब आप अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक आएगा। क्वेश्चन है फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन रहेगा बेटा। देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड कैश एट बैंक हमने लिख दिए, सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट हमने लिख दिया, डोनेशन फॉर जिम, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लोकल रेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, और पेमेंट में मैंने दिया वेजेज एंड सैलरी, इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स, हेल्थ जर्नल्स, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कोरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज, कैश बैलेंस। कैश इन हैंड का तो दे ही रखा था, कैश एट बैंक का हमने बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर लिया। बताइए आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो ऊपर हमने आइटम डिस्कस किए आप उसको समझ पाए कैसे लिखेंगे, बताइए आप समझ पाए कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें एंड डू इट योरसेल्फ, और मुझे जो है इस क्वेश्चन को करके आप सेंड करेंगे। साथ ही साथ इसका पहला इलस्ट्रेशन आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे विद सॉल्यूशन, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की फीचर्स और उसका फॉर्मेट आप लोग ड्रा कर लेंगे। यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।